The question is prove that y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in closed interval 0 comma pi by 2 बच्चों. तो first of all we write the question 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. Now find dy by d theta with the help of here quotient tool. It will be 2 plus cos theta the whole square, then 2 plus cos theta as it is into 4 sin theta का डेरिवेटिव होता है 4 cos theta minus then 4 sin theta as it is into 2 plus cos theta का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin theta. ओके, माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1. नाउ when we solve this we will get 4 cos theta minus cos square theta the whole upon 2 plus cos theta the whole square. बच्चों यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, we will get this thing and it will be now take cos theta common, तो ये बन जाएगा 4 minus cos theta the whole upon 2 plus cos theta the whole square. Okay, now 4 minus cos theta and बच्चों 2 plus cos theta both are positive in when theta belongs to closed interval 0 comma pi by 2, and also cos theta is greater than equal to 0 for all theta belongs to 0 से pi by 2. cos theta भी पॉजिटिव या 0 के इक्वल होता है. Therefore dy by d theta is always greater than 0. Okay, greater than equal to 0 on interval 0 से pi by 2. So this implies y is increasing on closed interval 0 comma pi by 2. So this is the solution of this question. Now the question is prove that fx equals to x square minus x plus 1. This function is neither strictly increasing nor decreasing on the open interval minus 1 comma 1. So now our function is fx equals to x square minus x plus 1. First of all find the derivative of fx. It will be 2x minus 1. Now for critical points f dash x equals to 0. This implies it will come out to be x equals to half. When we put 2x minus 1 equals to 0 बेटा, तो हमारे को x equals to half निकल करके वैल्यू निकल करके आती है. Now we divide the number line by this critical point half. यहाँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी नहीं, हमारा जो इंटरवल दिया हुआ माइनस 1 से 1, तो ये हुआ माइनस 1 से 1. माइनस 1 से 1 इंटरवल के बीच में एक हाफ पॉइंट आया. तो यहाँ देखते हैं, टेबल बनाते हैं. Now the table is this. We write value of x, sine of x minus half, sine of f dash x and nature of fx. So first of all we take the x value of x as minus 1 से half. Then x की वैल्यू लेते हैं हम हाफ से 1. यदि हम माइनस 1 से हाफ के बीच में कोई नंबर सोचें बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे एक नंबर 0 सोचा,
0 यहाँ पुट करते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हुआ ना, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, तो इफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव तो नेचर ऑफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा डिक्रीजिंग, -12 से हाफ पर हमारा डिक्रीजिंग आ गया। तो ऑब्वियसली बाय द ऑल्टरनेटिव थ्योरी हमारा ये इंक्रीजिंग आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। सी, हाफ से 1 के बीच में एक नंबर हमने लिया 0.7। ओके, 0.7 जब हम यहाँ रखते हैं इट विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बना तो इंक्रीजिंग आया बच्चों। तो हम बोलते हैं सो f इज इंक्रीजिंग ऑन 1/2, 1 एंड f इज डिक्रीजिंग ऑन -1/2, है ना। तो बच्चों अब यहाँ पर हम देख रहे हैं f की जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो -1 से 1 के बीच में एंटायरली एक जैसा नेचर नहीं है। ओके, तो हम बोल देंगे देयरफॉर f डैश x does not have the same sign, does not have the same sign throughout the interval, throughout the given interval -1,1. Okay, thus fx is neither increasing nor decreasing in the interval, fx is neither increasing nor decreasing in the interval -1,1. This is the solution of this question बच्चों। The next question is find the least value of a such that the function f given by fx equals to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1,2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फंक्शन को लिखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। नाउ इसका एफ डैश एक्स हुआ 2x प्लस ए। ओके, अब देखिए हमारे को ए की लीस्ट वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये फंक्शन 1,2 के बीच में इंक्रीजिंग बन जाए बच्चों। ओके, तो हम कहते हैं नाउ फॉर x जो है 1 से 2 के बीच में है, मतलब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, दिस इम्प्लाइज अगर x इनके बीच में है तो 2x किसके बीच में होगा बच्चों, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 2 2 2 4। ओके, दिस इम्प्लाइज अब हम कहते हैं 2x प्लस a इन बिटवीन, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 प्लस a और यहाँ से 4 प्लस a। ओके, तो हमारा एक तरीके से ये हो गया कि f डैश एक्स इज लेस देन 4 प्लस a बट ग्रेटर देन 2 प्लस a। ओके, ये हमारा बन गया बच्चों। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है यहाँ पर, f डैश एक्स इज इंक्रीजिंग is strictly increasing on 1,2। देखिए f डैश एक्स हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 1 से 2 के बीच में, कब, when f डैश एक्स when f डैश एक्स is greater than 0 for all 1 is less than x is less than 2, that is जब हमारा इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, f डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2 व्हेन f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, कब, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होती है इसका मतलब है कि f डैश एक्स हमारा 2 प्लस a
से 4 प्लस ए के बीच में है, ओके, इन दैट केस इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इफ 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए हमारा, है ना। ओके बच्चों, दैट इज, थोड़ा सा हमने इसको यहां पे लिखना था, दैट इज, क्योंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इज ग्रेटर देन 0 है मीन्स 2 प्लस ए, तो 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज a is greater than equal to -2, thus we say that least value of a equals to -2, क्योंकि a को ग्रेटर देन या इक्वल टू -2 होना है, तो अब a हमारा -2 से जितना मर्जी जाए उतना बड़ा हो सकता है, लेकिन लीस्ट में क्या बनेगा, a इक्वल्स टू -2, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।